اگر ہم کہیں کہ کتیبہ آیت لکھی گئی، رائٹ، ہوں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کتی کتب، آیتن، رائٹ، ہوں، آیتن رفع استعمال کریں گے، لیکن ایک چیز ہمیں کریکٹ کرنی پڑے گی اب، کیونکہ آیتن مؤنث ہے، فیمینن ہے، تو کتبت، کوتیبت استعمال کرنا پڑے گا ہم. تو ہوں، کوتیبت، تو کوتیبت آیتن، کوتیبت آیتن. تو جو ڈن ٹو، اگر ہمارا ڈن ٹو ہے کہ اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے ایز اے چیز بتانی ہے ہم نے کہ کیا چیز ہوئی ہے، تو ہم اس کو رفع استعمال کریں گے اور بعد میں آئے گا. تو یہ ایگزیکٹ اسی طرح ہے جیسے وہ ریگولر سینٹنس میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ ناصارہ عابدن کا مطلب تھا عابد نے مدد کی، تو ہم اس کی بجائے عابد استعمال کرتے تھے. اب ہوں، نصیرہ اگر ہوگا تو پھر ہوگا کہ عابد کی مدد کی گئی، جیسے ہوں، انزلہ ہے کہ وہ نازل کیا گیا، ہوں، تو انزلہ، انزلہ اس نے نازل کیا، انزلہ وہ نازل کیا گیا. اگر شروع اینڈ پہ قرآن ہو تو قرآن ہوں، نازل کیا گیا. تو اس طرح سے ہم اس کو پھر ایک، یہ وہی رول ہیں جو ہمارے اس میں تھے شروع میں آؤٹ سائڈ فائل کے. تو فعل ہوا یا ہیا ہونا چاہیے، ناصرہ نوسیرہ ہونا چاہیے یا نوسیرت، کتیبہ یا کتیبت، ڈپینڈنگ اپون کہ اس کا ڈن ٹو کون ہے. اور رول کیا تھا؟ نائب الفاعل رفع ہوگا، جیسے فائل آؤٹ سائڈ فائل رفع تھا، اسی طرح آؤٹ سائڈ نائب الفاعل بھی رفع ہی ہوگا. اور تیسرا رول جیسے اس میں تھا آؤٹ سائڈ ڈوئر میں، وہ بھی اسی میں بھی ہے کہ فعل پہلے آئے گا اور نائب الفاعل بعد میں آئے گا. جیسے کہ مشہور آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تو کیا چیز لکھی گئی ہے؟ روزے، روزے لکھے گئے. تو دیٹس مین کہ وہ لکھا گیا کی بجائے، لکھا مین یہاں پہ فرض کیا گیا ہے، تو وہ فرض کیا گیا کی بجائے کیا کہیں گے؟ روزے فرض کیے گئے. تو الصیام آپ وہ کو وہ کی جگہ لے لیں گے. اسی طرح اسی آیت میں آگے جا کے کیا آتا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل انزل، فیہ القرآن، تو انزل فیہ اور قرآن ہے، رائٹ، القرآن فیہ القرآن، نو، تو الف لام کے ساتھ القرآن. تو رفع استعمال ہوگا تو بعد میں وہ ہم اس کو ایز اے ڈن ٹو استعمال کریں گے. کوئی کوشچن ہو اس میں ابھی تک؟ لیٹس سی سم ایگزامپلس فرام دا قرآن. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، قرأ اس کا ریگولر کیا ہے؟ قرأ. قرأ قرأ، مین کہ قرأت کرنا، پڑھنا، پڑھنا. تو قُرِئَ وہ پڑھا پڑھا گیا، جائے، قرأ اس نے پڑھا، قُرِئَ وہ پڑھا گیا. تو قُرِئَ وہ پڑھا گیا، لیکن یہاں پہ ہم پھر کیا کریں گے؟ آؤٹ سائڈ نائب الفاعل. کون ہے آؤٹ سائڈ نائب الفاعل؟ قرآن. قرآن. تو ہم قرآن، وہ کی جگہ قرآن استعمال کریں گے. تو وہ کی جگہ ہم کہیں گے کہ القرآن پڑھا گیا. جب قرآن پڑھا جائے، تو اذا جب آتا ہے تو کیا میننگ ہوتی ہے سینٹنس کی؟ مضارع کی میننگ میں آتا ہے. ایون دو کہ قُرِئَ استعمال ہوا ہے جو کہ فعل ماضی مجہول ہے، لیکن ہم اس کو حال میں کریں گے یا مستقبل میں کریں گے جب قرآن پڑھا جائے، رائٹ، ناٹ کہ جو قرآن پڑھا گیا. تو اس لیے ہم گیا کی بجائے جائے کریں گے. جب قرآن پڑھا جائے یا قرآن پڑھا جاتا ہے، دونوں دونوں طرح آپ کر سکتے ہیں. دوسری ایگزامپل ہے فیہا یفرق کل امر حکیم. تو یہاں پہ مجہول کون سا ورڈ ہے؟ یفرق، یفرق. یہ فعل مضارع یا ماضی؟ مضارع. او اینڈ آ ساؤنڈ ہے، یا سے سٹارٹ ہو رہا ہے. یفرق فعل مضارع. تو مجہول ہے یفرق کا مطلب آپ کہنے کہ یہ فرق کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ فرق اس سینس میں ہے کہ آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں کسی چیز میں کہ یہ
ये फ़र्क किया है कि ये इसका हुक्म है, ये इसका हुक्म है, ये इसका हुक्म है, ये तकसीम करने के मीनिंग में। तो फीहा युफरकु, उसमें वो तकसीम किया जाता है। तो वो की जगह हम क्या करेंगे, या वो डिसाइड होता भी कह सकते हैं, या उसका फैसला किया जाता है। तो किस चीज़ का फैसला किया जाता है? काम का अमर के का। बाद कुरान, हाँ, रफा। कुल्लू ना। हाँ, रफा क्या आ रहा है उसमें? कुल्लू। 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 कुल्लू और अटैच है उसके साथ अमरिन, तो क्या रिलेशनशिप है इसकी? मुदाफ 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 मुदाफ। मुदाफ है। और अमरिन और हकीमिन अटैच है, इसकी क्या रिलेशनशिप है? ये भी ये जर है ना। हाँ जी, रिलेशनशिप क्या है? अमर और हकीम, अमरिन हकीमिन, मौसूफ सिफा होगा। मसूफ सिफा, मासूफ राइट। सिफा। तो ये चेन है। तो इसका मतलब है कि अब आप मीनिंग करेंगे तो आपको ये इकट्ठा ही रखना पड़ेगा। आप क्या कहेंगे फिर? फीहा, इसमें हर जो हुक्म है, हकीम हुक्म यानी हिकमत वाला हुक्म, उसका फैसला किया जाता है, राइट। सो कुल्लू अमरिन हकीम। तो हर वाइज, हर जो है हिकमत वाला हुक्म, तो उसमें उसका फैसला होता है, वो तकसीम किए जाते हैं, असाइन किए जाते हैं लोगों में। उख्शियत वजूहुहुम, इसमें कौन सा मजहूल है? ओशियत। ऊ, उक्शियत। हाँ जी, ऊ और ई साउंड, और माजी है या मुदारे? माजी। माजी। इसकी एंडिंग से आपको पता चल जाएगा, और ऊ और माजी। ई से पता चल जाएगा, तो ईया। तो उख्शियत, उख्शियत जैसे यगशा होता है ना, कि कवर करना किसी चीज को। ढके हाँ, गए। तो उसके पर्दे के अंदर कर लेना। उख्शियत वजूहुम, तो क्या चीज पर्दे में होगी, क्या चीज उनके ढांपी हुई चेहरे। होगी? चेहरे। चेहरे किसके साथ? होम भी है, तो ये अटैच है, उनको मुदाफल किया है। गया। उनके चेहरे। उनके चेहरे। तो उशियत क्यों इस्तेमाल हुआ है उशिया की बजाय? ब्रोकन प्रोग्रेस है। हाँ जी। ब्रोकन प्लूरल, हाँ जी, ब्रोकन प्लूरल फेमिनन, फेमिनन होता है, तो इसलिए फेमिनन इस्तेमाल हुआ। उशियत वजूह, तो उनके चेहरे ढंपे हुए होंगे। फकुलू मिम्मा ज़ुकिरस्मुल्लाहि अलैहि, इसमें कौन सा है मजहूल? जुकेर शुक्र। जुकेरा। ज़ुकीरा, जुकेरा। माजी, राइट। तो हाँ। ज़ाकरा का मतलब होता है कि जिक्र करना, और ज़ुकीरा क्या मतलब होगा? जिक्र जिक्र किया गया। किया गया। किया गया है। हाँ, जिक्र किया गया। तो वो जिक्र किया गया, तो इसकी जगह हम, वो की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हुआ। हुआ। होगा, लेकिन आउटसाइड नाइबुल फाइल है इसमें या नहीं है? अल्लाह ही नहीं, नहीं। इस्मुल्लाह। नहीं। इस्मुल्लाही, ये अल्लाह। पूरा, राइट, मुदाफ अल्लाह का नाम। तो फकुलू, तो खाओ, मिम्मा, उसमें से, जिस पर जुकी रस्मुल्लाही, अल्लाह का नाम नाम जिक्र लिया किया गया गया, है। नाम पढ़ा गया। जिक्र किया गया, अल्लाह का नाम जिक्र किया गया अलैहि, उस पर। तो हम्म। खाओ उसमें से जिस पर अल्लाह का नाम जिक्र किया गया। तो इसमें जुकीरा आउटसाइड नाइबुल फाइल यूज रहा है, इस्मुल्लाही। हम्म। उजीबत दावतु कुमा, उजीबत, माजी उजीबत। मुदारे। माजी। ये बाजी है। हाँ, ऊ और ई साउंड, राइट, ऊ और ई। उसके बाद बा तो लास्ट लेटर है ना, तो वो तो डिपेंडिंग अपॉन चार्ट उसकी चेंजेस आएंगी। तो माजी, उजीबत में इनके कबूल किया जाना, कबूल कर लिया या एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट किया। क्या एक्सेप्ट हो गया? उसने, वो एक्सेप्ट हो, दावत। राइट। सो वो कबूल हो गया। तो दावतु कुमा, तो क्या चीज, वो को हम नाइबुल फाइल है इस जुमले में या नहीं? दावत। तो दावतु दावत। कुमा, तुम दोनों की दावत, दावत। इस दुआ, ये दावत, ये हमारी दावत नहीं है कि दावत कबूल कर ली हमने, ये दुआ उन्होंने की थी, वो कबूल हो गई उनकी। उजीबत दावतु कुमा, तो तुम दोनों की दावत कबूल हो गई, जी। की गई, हो गई, या की गई, या कर ली गई।
माजी में, राइट। तो तुम दोनों की दुआ कबूल कर ली। इसलिए ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस समा। तो फतह फत्ताहा का मतलब होता फत्ताहु, है खोलना। हाँ, तुफत्तहु, तो फत्ताहु तुफत्तहु मुदारे माजी, मुद मुदारे मुजारे है ये। मुजारे और मजहूल है, ऊ एट आ साउंड। तो हम्म, तुफत्तहु, तो तुफत्तहु मतलब कि वो खोला जाएगा। ला तुफत्तहु वो ला का मतलब नहीं नहीं, होता ना। हाँ जी, वो नहीं खोला जाएगा। हम्म, वो नहीं खोला जाएगा। ला तुफत्तहु, तो क्या चीज नहीं खोली जाएगी उनके लिए? समा, अबवाब समाई। अबवाब उस समय के, आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। दरवाजे। वो की जगह हम क्या करेंगे? आसमान के दरवाजे। तो आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, तो फिर खोला को हम खोले कर देंगे, उसको सेंटेंस को मैच करने के लिए। तो ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस समा। तो सेंटेंस में हमने जब भी ये अगर हुआ और हिया वर्जन यूज हुआ है, तो हमें देखना है कि उसका नाइबुल फाइल आउटसाइड तो नहीं। अदरवाइज इसके अलावा अगर कोई भी इस्तेमाल हुआ है तो नाइबुल फाइल इनसाइड ही होगा। वो उसी तरह से हम यूज करेंगे और उस चीज पे या उस पर्सन पे अप्लाई हुआ होगा। तो एनी क्वेश्चन यहाँ तक? तो लाहुम जो हम्म? है वो लाहुम जो है उसमें होम रखा है या अबवाबों को देखना है? नहीं नहीं, लहुम को तो नहीं देखना ना। लहुम तो अबवाब रफा नहीं है, लहुम तो जार मजरूर है। हम्म, तो जार मजरूर नहीं देखना। तो बीच में कुछ और भी आ हाँ, जाए। जैसे आउटसाइड डोर में बीच में कुछ भी आ सकता है ना, इसमें भी आ सकता है। तो इस डजंट नीड टू बी नेक्स्ट टू द फेल। तो दरमियान में और चीजें आ सकती हैं। तो सब बाकी एग्जांपल्स में हाँ साथ साथ था ना। इसमें है लाहोम दरमियान में। तो दरमियान में और वर्ड्स आ सकते हैं, ये जैसे आउटसाइड डोर में आ सकते हैं। तो अगर कहीं भी आगे आया हुआ है उसी सेंटेंस में, तो फिर उसका वो नाइबुल फाइल वो कहलाएगा। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि किस वजह क्या होती है कि यूज़ क्यों किया जाता है, कि मजहूल यूज़ करने की वजह क्या होती है, कि जब राइटर लिखता है या बात करते हैं हम, तो किस वजह से हम मजहूल यूज़ करते हैं। तो मजहूल का फर्स्ट बेनिफिट क्या है कि आउट डूअर इसका हाइड हो जाता है। तो डूअर वी डोंट नो कि डूअर कौन है। तो सबसे बड़ा तो ये ना, जब हमने डूअर को ना बताना हो तो हम उसको अब मजहूल करके यूज़ करते हैं। जैसे हम करते हैं कि डोनेशन मिल गई, तो लेकिन किसने दी वी डोंट नो, कि उसका नाम बताना नहीं चाहते। तो उसने कहा था कि मेरा नाम नहीं बताना, तो हम इस तरह से उसको हाइड करते हैं। तो इसी तरह कुछ रीजंस लैंग्वेज में होती हैं कि किस वजह से आप हाइड करते हैं। तो एक रीज़न होती है कि पहली रीज़न है कि जब डूअर मेंशन नहीं करना चाहते आप, कि कोई रीज़न नहीं है कि मेंशन नहीं करना है, ताकि उसका आ, लोगों को डन टू पे ज़्यादा तवज्जो दें, डूअर पे तवज्जो ना दें लोग। जैसे आया है वाइज़ा हुई तुम बितहियतिन फ़हिय्यु बिअहसन मिनहा औ रुद्दूहा। इसमें कौन सा मजहूल नजर आ रहा है आपको? हुई ये, हुई हाँ, ये। हुई तुम, ऊ और ई साउंड और तुम है एंड पे, तो ये अनतुम हो गया, राइट। अनतुम। तो हुई का मतलब होता है कि दुआ देना भी होता है या ग्रीटिंग्स करना होता है। जैसे आप मिलते हैं ना किसी से तो सलाम करते हैं, ये भी ग्रीटिंग का हिस्सा है। तो इस तरह के उसको, जैसे अत्ताहियात का वर्ड भी इसी से ही ड्राइव हुआ है, ये सेम रूट से आता है। तो हुई तुम, तो अगर ये रेगुलर होता तो क्या मीनिंग थी इसकी? जब तुम दुआ दो या तुम सलाम करो या तुम ग्रीटिंग करो, ग्रीट करो किसी को। लेकिन अब क्या है इसका मीनिंग? जब तुम, हाँ, तुम दुआ दिए जाओ। को दुआ दिए हम्म, जाओ, हाँ जी, दुआ जब दिए जाए। तुमको कह लेंगे, चले हम कहते हैं कि सलाम किया जाए।
बितहियतिन के कोई भी दुआ, बितहियतिन, अब ये फेल एज ए इसम इस्तेमाल हुआ है कि हुई तुम, इट मीन के तुमको सलाम किया जाए या दुआ दी जाए। और बितहियतिन एनी काइंड ऑफ ग्रीटिंग, एनी काइंड ऑफ दुआ, एनी काइंड ऑफ सलाम, कोई भी आपको मिले तो आपको वो ग्रीट करे, तो फहय्यू तो तुम भी करो। हय्यू रेगुलर है या ये भी ये मजहूल है? वहां पे मजहूल, पेश तो नहीं है ना, मजहूल। हाँ जी, हाँ पे ऊ हाँ साउंड नहीं है, तो ये मजहूल। नहीं और है माजी है मुजारे? ये। माजी, माजी, माजी लग रहा है मुझे। मुजारे को रूल आउट करने के या, ता, नून, अलिफ, उसमें से कोई भी नहीं है ना, तो फिर नहीं मुजारे तो नहीं हो ही है। सकता है। मुजारे तो आउट हो हाँ गया, तो ये माजी। माजी ही है। हम्म, तो फहय्यू तो तुम भी करो, फहय्यू ये कमांड है कि तुम भी करो, तुम भी दुआ दो, बी ahsana, बेटर, राइट, सो अच्छी, बेहतर कह लें आप इसको, कि उससे अच्छी, मिनहा, जो तुम्हें दिया ना उसमें से बेहतर करो, आओ रुद्दूहा, या सेम, या उसी को रिटर्न कर दो, राइट। जैसे इस्लाम करते हैं ना, अस्सलाम वालेकुम, तो जवाब देने वाला कहता है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, कोई आगे वो ये है कि आपने उससे अच्छा जवाब दिया है। कोई कहता है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि, तो जवाब देते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ये भी अच्छा जवाब हो गया। और अगर कोई पूरा करता है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, तो हम जवाब देते हैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, दैट्स द रुद्दू है, कि सेम सेम हमने उसको वापस कर दिया। अब ये है कि इस आयत में क्या हुक्म दिया जा रहा है, फहय्यू तो ये कमांड है, राइट, माजी की, तो ये हुक्म है हमारे लिए। तो जब भी तुमको ग्रीटिंग करे, कोई सलाम करे या दुआ दे, तो उसको रिटर्न करो, या बेहतर या सेम। तो इसमें अब डूअर नहीं है कि कौन आपको ग्रीटिंग करता है, तो डूअर इज हाइट। हुक्म दिया गया कि जब कि आपको ग्रीट करेगा कोई, तो आपने उसका अच्छा जवाब देना। तो अब डूअर हाइड है, तो इट मीन्स के डूअर पे आपने नहीं फोकस करना कि किसने ग्रीट की। हो सकता है आपका दुश्मन आपको सलाम कर रहा हो, या जिससे आपकी बोलचाल बंद है वो सलाम कर रहा है, या जो आपको पसंद नहीं है वो सलाम कर रहा है। तो इट डजेंट मैटर कि कौन सलाम कर रहा है, हुक्म क्या है कि बियाहसानी आओ रुद्दूहा, बियाहसाना आओ रुद्दूहा, तो दोनों हमें उसी तरह रिटर्न करना है। तो डजेंट, वो हमने डूअर पे नहीं लुक करना है कि कौन कर रहा है, जवाब देना। तो ये इसीलिए ये वन रीज़न है कि डूअर मेंशन ही नहीं किया गया है, कि आप डूअर को ना देखें कौन सलाम कर रहा है, आपने जवाब देना है जैसा भी है। तो इसीलिए वो फुकहा कहते हैं कि जब सलाम दिया जाए, सलाम करना तो फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन उसका जवाब देना फ़र्ज़ बन जाता है, क्यों वो इस साइड से ये लेते हैं कि हय्यू, क्या आपने जवाब तो देना ही देना है। तो सलाम करने का जवाब देना फ़र्ज़, फ़र्ज़ इसीलिए फ़र्ज़ समझा जाता है। तो फ़र्ज़ है हमारे लिए, जब भी हमें कोई सलाम करे उसका जवाब दिया जाए। और एग्जाम्पल है इसकी, ये सूरह निसा की आयत है 86। इसी तरह सूरह निसा की ही एक और आयत है, ये 140, इज़ा समय तुम रेगुलर है या मजहूल है? तुम ये तो समय तुम मजबूर। ये नून एक रेगुलर है। रेगुलर, तो समय तुम जब तुम सुनो, राइट। इज़ा, इसमें भी इज़ा है, तो ट्रांसलेशन हाल में और फ्यूचर में होगी। जब भी तुम सुनो आयातिल्लाही, अल्लाह की आयत, राइट, युकफरू बिहा, अब यहाँ पे ये मजहूल है, ऊ एंड आ साउंड, राइट, और मुदारे। युकफरू बिहा का मतलब होता है कि एक उसका इनकार करना है, इनकार किया जाता है, तो मजहूल है ना ये, तो इनकार किया जाता है। तो किसका इनकार किया जाता है, वो चीज़ पहले मेंशन हो गई है, आयातिल्लाही, लेकिन ये आउटसाइड आउटसाइड नाइबुल फाइल नहीं है, राइट। सो हम इसका तर्जुमा क्या करेंगे, उसका इनकार किया जाता है। ये नहीं करेंगे कि आयातिल्लाही का इनकार किया जाता है, क्योंकि वो आउटसाइड नहीं है। तो इसका क्या होगा, जब भी तुम सुनो आयातिल्लाही और के युकफरू बिहा, उसका इनकार किया जाता है,
व युस्तहज़अ बिहा, दोबारा ये भी मजहूल मजहूल। उरा, इसका क्या मतलब होता है? मजाक उड़ाया जाना, मजाक उड़ाना। तो जब भी तुम देखो, जब भी तुम सुनो आयातिल्लाही युकफरू बिहा, उसका क्या, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है या उसका इनकार किया जा रहा है, फला तकउदू माहुम, तो जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं क्या करना है? ला तकउदू कमांड, नहीं। ना कादा बैठना होता है ना, जैसे नमाज में कादा कहते हैं ना, कादा तशद जैसे होता है, तो कादा बैठना है, तो ना बैठो तुम सब, तकउदूना से, तकउदू लाइटेस्ट और ला के साथ, तो ना बैठो माहुम, माहुम with them. विद देम, उनके साथ। उनके साथ। तो इसमें कमांड क्या है कि जब भी तुम सुनोगे आयत अल्लाह की आयत से कुफर किया जा रहा है या उसका मजाक, या उससे कुफर किया जा रहा है या उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो तुम उनके साथ ना बैठो। तो इसमें भी डूअर इज हाइडिंग, ये नहीं हमें बताया गया है कि कौन मजाक उड़ा रहा है। तो एनीबॉडी जो भी ये काम करेगा, युकफरू बिहा व यस युस्तहज़अ बिहा, तो इवन दो वो आपका बहुत जानी दोस्त हो, आपका बहुत ही आपका पसंदीदा हो, तब लेकिन हुक्म ये है कि करने वाला कोई भी हो, नॉन मुस्लिम हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो सकता है, या आपका बहुत ज़्यादा है, आपका करीबी रिश्तेदार भी हो सकता है, करीबी दोस्त भी हो सकता है, लेकिन एनी सूरत जो भी हो उसका करने वाला, तो हुक्म इसमें दोबारा फॉरबिडिंग राइट, तो ला तकूदू माहुम, तो उनके साथ ना बैठो, तो उनसे चले जाना चाहिए हमें, कि जब भी हम ये देखें अगर कोई कर रहा है, अगर या तो हम रोकें या फिर चले जाएं। तो इसमें भी डूअर इज हाइडिंग, क्योंकि डूअर कोई भी हो सकता है, तो डूअर मेंशन करने की जरूरत नहीं। इसी तरह और रीजन हो सकती हैं, जैसे कि माँ एक ये क्वेश्चन था इससे पहले हम्म वाले में। हम्म पहली वाली आय जो है ना, पहाई पहाई यू, हम्म पहली वाली इसमें माजी में क्यों? मतलब हम तो प्रेजेंट में बात कर रहे हैं ना कि जब कोई करे इज़ा तो। की वजह से, इज़ा जब आता है ना, तो चाहे माजी इस्तेमाल हुआ हो चाहे मुदारे इस्तेमाल हुआ हो, तर्जुमा उसका हम मुजारे में ही करेंगे। तर्जुमा करेंगे, लेकिन वो लिखा हुआ जब पास में जाएगा, ठीक है। हाँ, वो यूज पास्ट टेंस होगा, लेकिन तर्जमा उसका वो इसी तरह होगा कि हम फ्यूचर में बात कर रहे हैं, अच्छा, इज़ा सही। की वजह से। दोनों ठीक दोनों है। आयतों में इज़ा है ना। हाँ, ठीक है, ठीक। हालांकि यहाँ भी माजी इस्तेमाल हुआ कि जब तुम सुना तुमने, लेकिन हम्म। समय तुम, हम उसको हाल में और फ्यूचर में करेंगे, इज़ा की वजह से। ठीक। तो दो वर्ड होते हैं, एक इज़ होता है अलिफ और जाल, और एक इज़ा होता है। इज़ होगा तो माजी होगा हमेशा, चाहे आगे मुजारे आ रहा हो, फेल यूज हुआ, और इज़ा होगा तो हमेशा हमें मुजारे में करना होगा, उसका ठीक। मीनिंग उसका मुजारे में बनेगा। ठीक। कभी कुछ रीज़न होती है कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट हम फाइल को हम उसको हाइड करते हैं, कि रिस्पेक्ट की वजह से, कि हम बताने नहीं चाहते कि किसने सजा दी है, राइट, तो हम कहते हैं उसको सजा दी गई, लेकिन किसने दी है हम हाइड कर रहे होते हैं, आउट ऑफ रिस्पेक्ट। तो इसी तरह सूरह जिन की आयत है, जहाँ जिन्हों ने यही काम किया है, कि जो जिन्नों का जुमला है वो कहते हैं वह अन्ना ला नदरी अशरुन उरीदा बिमन फिल अर्दी अम अरादा बिहिम रब्बुहुम रशद, वह अन्ना ला नदरी, तो वो जिन कह रहे हैं, वह अन्ना और बेशक हम, अन्ना नॉट बेशक, के हम, अन्ना नहन। प्लस ना है ना, तो अन्ना बन गया, तो अन्ना तो बेशक के हम, ला नदरी नहीं जानते, दरा यदरी का मतलब होता है जानना, टू नो, तो ला नदरी, ला तदरी तुम नहीं जानते, ला नदरी हम नहीं जानते, ला नदरी हम नहीं, ये मुजारे यूज हुआ है, राइट, नहीं जानते। और ये ला नदरी, तो ये कमांड तो नहीं हो सकती ना, कमांड तो नहीं, कमांड क्यों नहीं हो सकती ये? आगे ला लगा हुआ है। ये ला नहीं, ला फॉरबिडन है या नहीं है, फॉर नहीं है, या
नहीं नहीं ये कमांड वाला नहीं है या न- नाफिया है या नाहिया है? नाहिया नहीं है। हाँ, नाहिया नहीं है ना, मना नहीं किया गया है। हम्म, क्यों नहीं है? नाहिया तो हमेशा सेकंड पर्सन होता है ना, ये तो फर्स्ट पर्सन नदरी कह रहा है ना, हम। हम्म, तो अपने आप को तो नहीं कमांड देते, तो ये, और दूसरा ये लाइटेस्ट भी नहीं। ला नदरी, तो वो कहते हैं कि हम नहीं जानते। अशर्रुन उरीदा बिमन फिल अर्दी। उरीदा यहाँ पे जो है ये वर्ड हमने मजहूल। जो, हाँ जी, सेंटर ऑफ अटेंशन जो है वो उरीद है। अरादा, अरादा का मतलब होता है इरादा करना, राइट, जैसा इरादा करना। उरीदा, इरादा किया गया है। किया गया। अब वो कहते हैं कि हमें नहीं पता है कि इरादा किया गया है किस चीज़ का। अशर्रुन, कोई कोई शर की चीज़, कोई बुराई की चीज़, या कोई कैलेमिटी हैपन होने वाली है बिमन फिल अर्दी, उन पर जो ज़मीन में है, राइट। क्यों, क्या हुआ था, जिन 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 जब जाते थे ऊपर तो कहते थे कि अब हम पहले जाते थे तो आराम से जाके सुनगुन कर लेते थे, लेकिन अब नहीं जा सकते, पहरे बहुत सख्त हो गए, राइट। तो उस टाइम पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेइज्जत होनी थी, कुरान उतरना था, तो वो कहते हैं कि ला नदरी शरन उरीदा बिमन फिल अर्दी, कि हमें नहीं पता है कि कोई क्यों ये पहरे लग गए हैं, क्या जमीन वालों के साथ कोई बुराई का इरादा किया गया है। और सेकंड फिर कहते हैं या हम अरादा बिहिम, अब देखें, अब ये मालूम इस्तेमाल हुआ है, अब ये मजहूल नहीं है। या अरादा बिहिम, या इरादा किया है उसने, रब्बुहुम, तो उसकी जगह क्या करेंगे, किसने इरादा किया, उनके रब ने। रब्बुहुम इस रफा, तो उनके रब ने इरादा किया है उनके साथ रशादा, हदायत का या अच्छी चीज का, राइट, सो हदायत का। अब देखें, जब जिन्हों ने कहा है, जब शर की बात थी तो उन्होंने हाइड कर दिया है, उन्होंने अल्लाह ताला का नाम नहीं लिया है। जब शर की बात थी तो वो अल्लाह ताला के साथ शर को एट्रीब्यूट नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब रशदा की बात आई, हदायत की बात आई, तो तब उन्होंने उसको मजहूल नहीं किया, उन्होंने अरादा बिहिम रब्बुहुम रशदा का है। तो यहाँ पे उन्होंने रब को इस्तेमाल किया है, लेकिन ऊपर उन्होंने पहले सेंटेंस में उन्होंने हाइड कर दिया। तो जैस दिस इज आउट ऑफ रिस्पेक्ट के, उन्होंने अच्छा नहीं समझा है, उन्होंने रिस्पेक्ट से कि अल्लाह ताला का नाम हम बुराई के साथ ना ही लगाएं, तो उन्होंने उसको रिवर्स कर दिया वहाँ पे, लेकिन बाद वाले पोर्शन में उन्होंने उसको मालूम रखा, मजहूल नहीं किया, उन्होंने बिहिम रब्बुहुम रशादा। तो ये इसमें आपको पता चलता है कि एक रीज़न है कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट भी, जब अल्लाह ताला की बात होती है तो आप आउट ऑफ रिस्पेक्ट उसको एट्रीब्यूट नहीं करते अल्लाह ताला के साथ, जो शर की चीज़ें होती। हालांकि एवरीथिंग कम्स फ्रॉम अल्लाह, लेकिन ये दिस इज आउट ऑफ रिस्पेक्ट। तो उन्होंने कहा कि ला नदरी अशरुन उरीदा बिमन फिल अर्दी अम अरादा बिहिम रब्बुहुम रशदा। इसमें शर्रून के साथ जो आया ना अशर्रून, हम्म, ये क्वेश्चन के लिए या ये ये जो हमजा हमजा शुरू में हम्म, अशरुन, वैसे तो शर्रून होता नहीं क्वेश्चन तो नहीं है। हाँ, क्वेश्चन क्वेश्चन ही है, हाँ, क्योंकि आम है ना बाद में। या क्वेश्चन ही है, कि क्वेश्चन ही कर रहे हैं कि वो नादरी कि क्या कहीं अल्लाह इरादा किया गया है जमीन वालों के साथ कि क्या ये शर का। शर है। ये क्वेश्चन वाला नहीं। आम फिर या, आम भी उसी टाइम आता है या क्वेश्चन के तौर पे, कि अम अरादा बिहिम रब्बुहुम रशदा। तो इसी तरह ये सहाबा कराम की सुन्नत रही है कि जब, अगर आप अहादीस में देखें, जब उन्होंने बयान की होती है ना कुछ चीज़ें, कि एक एक आदमी आया, उसने कुछ बोला जो गलत गलत चीज़ें होती हैं, उसमें वो आदमी का नाम नहीं लेते, या वो मजहूल करते हैं या सिर्फ प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, कि एक आदमी आया था उसने ऐसे किया है। लेकिन जब अच्छी बात होती है तो फिर उसका नाम लेते हैं, कि फलाना उस सहाबी ने ये कहा, फिर अच्छी बात में उसका नाम मेंशन करते हैं। तो इसी तरह ये जिन्हों ने भी स्टेटमेंट में यही किया। तो लास्ट एग्जांपल है इसकी, कभी कभी होता है कि आप स्कोप को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो आप नाम नहीं लेते कि किसने किया है, क्योंकि स्कोप उसका ज़्यादा करना है। अ, इरादा होता है कि स्कोप ज़्यादा हो, जैसे लुइनु फिद दुनिया वल आखिरा। लुइनु, वो लानत किए गए, राइट।
آمین وہ لعنت کیے گئے فی دنیا والا آخرہ. اب یہ مجہول ہے لوئی نو، یا ڈور نہیں پتا ہے کس نے لعنت کی. تو جب اس طرح سے آپ ڈیفائن کرتے ہیں تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ ایکسپینڈ کر دیا اسکوپ کے، کوئی ایک نہیں ہے ڈور، بے شمار ڈور ہیں. جن بھی ہو سکتے ہیں، فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ہو سکتے ہیں، نیک بندے بھی ہو سکتے ہیں، مومن بھی ہو سکتے ہیں. تو سب ایز اے ڈور ہے نا کہ لوئن فی دنیا کے وہ لعنت کیے گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن کس نے لعنت کی یہ نہیں بتایا گیا. تو اسکوپ ایکسپینڈ ہو جاتا ہے اس سے. جب ڈور ہائڈ ہو جاتا ہے تو اسکوپ ایکسپینڈ ہو گیا کہ اب ہمارے ذہن میں آتا ہے اب جو بھی ایک ازیوم کر لیں، مے بی کہ پرندوں نے بھی لعنت کی ہو، مچھلیوں نے بھی کی ہو، اینی کائنڈ آف تھنگ، رائٹ. سو اس طرح سے اسکوپ کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے بھی پیسیو یوز ہوتا ہے. تو یہ کچھ ایگزامپلز ہیں. تو جب آپ پڑھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیسیو یوز ہوا ہے تو کیا وجہ ہے، اس پہ آپ تدبر بھی کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ آپ کو ہیلپ کرے گا یہ ایگزامپلس سمجھنے میں مجہول کو. تو انشاءاللہ اور کوئی کویسچن ہو؟ چل جزاکم اللہ خیرن. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرن. دعا کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واهدنا سبل السلام. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم یا شافی الامراض اشفی مرضانا و مرض المسلمین. اللہم اشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.